Hello students, today we will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleague from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of the deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win the fight against COVID-19. Now we will start our class assignment. Today we are going to do the discovery of the word, that is geography for class 9, and we are following the publication Evergreen. Our first topic is the Earth as a planet. In this topic we will cover the concept of Earth as planet and shape of the Earth, Earth as the home of humankind and collection that exist. Now what is the Earth? Earth is a unique planet. Why it is called unique planet? The Earth is one of the 8 planets revolving around the Sun. हमारी धरती उन 8 प्लैनेट्स में से एक है जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है. द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट अवे फ्रॉम सन, मर्करी एंड वीनस बीइंग द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. It is situated at a distance of about 115 million kilometers from the sun. The orbit of the Earth around the Sun lies between those of Venus and Mars. Now, why Earth is unique planet? It is only planet having life on it. क्योंकि ये माना जाता है कि अर्थ ही सिर्फ इकलौता प्लैनेट अभी तक है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है. It is a home to a large variety of life forms ranging from microscopic plants and animal organisms to the largest of trees and animals. ये ऐसा घर है जहाँ पे बिल्कुल सूक्ष्म पौधे और जानवर से लेके सबसे बड़े पेड़ और जानवर रहते हैं. इट इज़ द प्लैनेट विच हैज़ एटमॉस्फेयर. अर्थ का अपना खुद का वातावरण है. द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिट नॉट ओनली द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो दे लिव इन द ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर. और यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र और ऊपर के वातावरण में भी रहते हैं. In this chapter we shall study the shape and size of the earth and the conditions which are favorable for the evolution of life of earth. Now shape of earth, हमारी अर्थ की शेप कैसी है? In the olden days it was believed that earth is flat. पहले ये माना जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो flat है. Due to this belief, the sailors were afraid to traveling to far off places, thinking that they would slip into bottomless ocean from the edges of the earth. तो इसी धारणा की वजह से जो सेलर्स थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करते थे क्योंकि वो मानते थे कि जहाँ पे हमारी अर्थ का सरफेस एरिया ख़त्म हो जाएगा वो बहुत गहरे सागर में गिर जाएंगे. Then there are certain facts that statistical data of the earth are provided. इसकी एज, वेट, इक्वेटोरियल डायमीटर, पोलर डायमीटर, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, पोलर सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एवरेज टेम्परेचर, रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड, टोटल सरफेस एरिया. Now, the belief about the flat shape of earth was changed through the work of ancient scholars like Pythagoras, Aristotle, Ptolemy, Aryabhatta and Copernicus. Pythagoras is believed to have been the first to hypothesize that shape of the earth is spherical. तो पाइथागोरस वो सबसे पहले थे जिन्होंने ये थीसिस दी थी कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है. With the assumption of its spherical shape, Aristotle's calculate the correct circumference of earth. इसी assumption को मान के एरिस्टोथीन्स ने जो हमारी अर्थ का प्रॉपर सर्कमफ्रेंस है उसको वैल्यूएट किया. अरिस्टोटल एंड टॉलमी ऑल्सो एक्सेप्टेड द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ. उसके बाद बाकी के जो थे अरिस्टोटल एंड टॉलमी उन्होंने भी अर्थ की स्फेरिकल शेप को एक्सेप्ट किया. हाउएवर टॉलमी बिलीव दैट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल अदर हेवनली ऑब्जेक्ट ऑर्बिट अराउंड इट. पर उसमें से टॉलमी की थीसिस ये थी कि जो हमारी धरती है वो पूरे ब्रह्मांड का मध्य है और जितने भी बाकी के हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो हमारी धरती के इर्द गिर्द
चक्कर लगाती हैं। Copernicus, a Polish astronomer, in 1543 published a famous book on the revolution of heavenly bodies. यहाँ पे heavenly bodies किनको बोला जाता है? Planets को. Wherein he stated that Earth is round and rotates on its axis and revolves around Sun. जहाँ पे उन्होंने बताया कि धरती अपनी धुरी पे घूमती है और ये सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। He thus gave the theory that sun is the center of solar system. और उन्होंने ये थ्योरी दी कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन है। This view of Copernicus is called heliocentric. इस थीसिस को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोला जाता है। हेलियो का मीन्स होता है सन। He stated that days and nights are caused by the rotation of earth round the sun. ये तो हम सभी को पता है कि days and night क्यों occur होती हैं, and not the other way around way it was believed by the early scholars. तो उन्होंने ये सबसे पहले प्रॉपर थ्योरी दी कि अर्थ पे डेज और नाइट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आर्यभट्ट हु लिव्ड मैनी ईयर्स बिफोर कोपरनिकस had also stated that earth has spherical shape. सेम वे में आर्यभट्ट ने भी डिस्क्राइब किया कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। Columbus, an Italian sailor, was the first person to accept the idea of earth's spherical shape. कोलंबस जो कि फेमस ट्रैवलर है, उन्होंने सबसे पहले अर्थ के स्फेरिकल शेप के आइडिया को एक्सेप्ट किया। He suggested that one can reach the ईस्ट बाय सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप। उनकी सजेशन थी कि हम ईस्ट से सेल करके यूरोप में वेस्ट से पहुंच सकते हैं। ही वॉज प्रूवन करेक्ट व्हेन Portuguese navigator Magellan's ship sailed back safely to Europe after crossing Atlantic, Pacific and Indian Oceans। और उनकी ये थीसिस को मैगेलन ने प्रूव किया जब उन्होंने अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन को कवर करके वापस यूरोप में सेफली एंटर किया। सर्कलिंग द एंटायर अर्थ, तो इन तीनों ओशंस को कवर अप करके उन्होंने एंटायर अर्थ का एक पूरा सर्कल राउंड किया था। द थ्योरी ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ वॉज दस प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट। तो ये प्रैक्टिकल हो गया था, तो इसके बाद ये प्रॉपरली प्रूव हो गया कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। नाउ इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, इसमें कई चीज़ें हो जाती हैं। द राइजिंग ऑफ सन इज सीन फर्स्ट एट प्लेस इन द ईस्ट देन एट प्लेस इन द वेस्ट। तो सबसे पहले सन की राइजिंग कहाँ पे देखी जाती है? ईस्ट में। इफ़ द अर्थ वॉज फ्लैट द राइजिंग सन वुड बी सीन ऑल द प्लेसेस सेम टाइम। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर ईस्ट में पहले देखा जाता है और वेस्ट में बाद में, तो इसका मतलब है हमारी अर्थ राउंड है। अगर ये फ्लैट होती तो जो पूरी की पूरा सनराइज़ है वो पूरी अर्थ पे एक समान दिखता। तो इसी तरह और कई चीज़ें हैं और एग्जाम्पलीफिकेशन जैसे बोट का है इन द सी, ये सभी इसी चीज़ की एग्जाम्पलीफिकेशन है या प्रूविंग थ्योरीज हैं। उसके बाद ऑल्दो द शेप ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड स्फेरिकल द अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्फीयर। हमारी अर्थ को स्फेरिकल बोला जाता है पर ये बिल्कुल गोल प्रॉपर नहीं है। इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज स्लाइटली लॉन्गर देन पोलर डायमीटर। ये थोड़ी सी बल्जी है, इसलिए इक्वेटर पे इसका डायमीटर पोलर डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और उसका डिफरेंस कितना है दोनों का? 21.5 किलोमीटर। एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस? दिस इज़ ड्यू टू स्लाइट बल्ज ऑन इक्वेटर एंड स्लाइट फ्लैटनिंग एट द पोल एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ड्यू टू दिस अर्थ इज़ कॉल्ड ओबलेट स्फीयर और स्फेरियोड। इसकी वजह से हम अर्थ को ओबलेट स्फीयर या स्फेरियोड बोलते हैं। द स्लाइट बल्ज ऑन इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज़ परहैप्स एज रिजल्ट ऑफ रोटेशन एट द ट्रिमेंडस स्पीड। और इस बल्ज की वजह क्या है? क्योंकि धरती अपनी एक्सिस पर बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमती है, क्योंकि अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से ये इक्वेटोरियल रीजन पे थोड़ी बल्ज हो जाती है और पोलर रीजन से थोड़ी श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से इसको ओबलेट स्फीयर या स्फेरियोड बोलते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल रिज्यूम विद क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।